इस धरती में, इस भूमंडल पर सब प्रकार के जीव जंतु है ना। तो एक एक प्रकार का, जैसे समझ लीजिए जानवरों में भी उनका खाने पीने का समय। आप घर में अगर कुत्ते को पाले होंगे तो ऑब्जर्व करना, उनका पेट भरने के बाद वो दूसरा आप कुछ भी दो खाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। उनका खाने का टाइम जो मुकर्रर होता है, बस जो भी जानवर है। और कोई भी प्रकार का अगर मतलब नेचुरल क्लैमिटीज होते हैं तो सबसे ज़्यादा कैच पहले कौन करते हैं? जानवर ही करते हैं। एक तो उनका ऑडिबल जो रेंज है वो भी ज़्यादा होता है, और उससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द साइंस और अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअलिटी वो सोचते नहीं हैं ना। बाहर कंस्ट्रक्शंस होते तो उतना दूर, और अभी वर्तमान समय हमारे मन में इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अननेसेसरी डाटा अगर आप फ़ोन में क्लियर नहीं करेंगे तो आपका कितना अच्छा भी फ़ोन हो वो स्लो ही हो जाता है। तो ये मन की बात क्या है आपका फ़ोन का, तो आपको समझ में आ जाता है। साल में एक बार या 2 साल को एक बार बदल देते हो। ये शरीर बदल जाता है क्या? साल में एक बार बदलता है क्या? नहीं। तो उसमें तो हम अननेसेसरी डाटा भरते जाते, उसको डिलीट करने का तो फुर्सत ही नहीं है। तो फिर हम प्रॉब्लम्स का सोचते, डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो ऐप्स क्या हो गए, नीचे ऊपर होने लगेंगे, और उसमें हीट ज़्यादा होता है तो दिमाग भी गर्म होगा, ज़्यादा डाटा हो गया तो हमारा व्यवहार भी जहाँ खुश रहे ना वहाँ रोने लगते, जहाँ रोना है वहाँ। Greetings, Om Shanti. Good evening. So I welcome all of you who have taken out time Sunday evening to attend this refreshing Sunday evening talk. So the topic of these Sunday talks are usually stress management, time management, and various speakers all across the world. They come to deliver the lecture on those topics. So what is the today's topic? Yes, Ugadi. So Shri Parabhavanama Ugadi. So we will look into the spiritual significance and the meaning of Ugadi. So yes, why do we celebrate Ugadi? A brief start if we have to do. You would know that yes, it's a new year in Telugu, and it's the time for the new beginnings, prosperity and hope. And usually we clean our homes and then also decorate the doorways with the mango leaves, and also prepare a very special dish, Ugadi Pachdi, yes, which symbolizes different flavors of life. So you do all the things, and whenever there is a festival, it is incomplete if we don't start it with the music. Okay, so we have a very renowned and also special singer among us, Brahma Kumari Vishnupriya Bhan. She will start with the beautiful and divine song on Ugadi. ओम शांति। पहले हम गीत सुनेंगे। एक्चुअली ये गीत जो है तेलुगु में बनाया हुआ है ब्रह्म कुमारी ने। हम बाद में उसका अर्थ भी समझेंगे, क्या है उगादी, क्या मीनिंग, और उगादी में क्या क्या करने। इस गीत में जो है हम परमात्मा को आह्वान करते हैं इस सभा में, क्योंकि इस साल जो भी है हमारा जो भी संकल्प है वो पूर्ण हो जाए और हम सदा सुख शांति से जिए। इस संकल्प से परमात्मा को आह्वान करेंगे। శుభారంభమయ్యే నవవర్షమేలే పరమాత్ముని ఆశీసులతో ప్రారంభమయ్యే ఉగాది పావన పర్వదినమున శుభమైన సంకల్పాలే అడుగు అడుగునా అంబరమే మెరిసే పుడమి పులకరించి
స్వీకరించే స్వాగతమిదే నవవర్షానికి శుభ ఘడియలే ఆరంభమయ్యే శుభారంభమయ్యే నవవర్షమేలే పరమాత్ముని ఆశీసులతో ప్రారంభమయ్యే దివ్య గుణాలే చిగురించేలే చిరునవ్వులే మనలు చిందించేలే స్వప్నాలన్నీ సాకారం అయ్యే సంతోషాలే అలలై పొంగే అనురాగం ఆత్మీయతతో శివ పరమాత్ముని స్మరణతోనే జీవితమే ఆనందమయ్యే శుభ ఘడియలే ఆరంభమయ్యే శుభారంభమయ్యే నవవర్షమేలే పరమాత్ముని ఆశీసులతో ప్రారంభమయ్యే తీపి అనురాగం కారం మమకారం ఉగాది పచ్చడి షడ్రుచుల అమృతం గెలుపు ఓటమి సుఖము దుఃఖం కలబోసినదే మన ఈ జీవితం ఆరోగ్యంతో ఐశ్వర్యంతో కొత్త ఆశలతో కొత్త ఆశయాలతో ఈ నవ వసంతం ఈ నవ వర్షం శుభ ఘడియలే ఆరంభమయ్యే శుభారంభమయ్యే నవవర్షమేలే పరమాత్ముని ఆశీసులతో ప్రారంభమయ్యే ఉగాది పావన పర్వదినమున శుభమైన సంకల్పాలే అడుగు అడుగునా అంబరమే మెరిసే పుడమి పులకరించే స్వాగతమిదే నవవర్షానికి శుభ ఘడియలే ఆరంభమయ్యే శుభారంభమయ్యే నవవర్షమేలే పరమాత్ముని ఆశీసులతో ప్రారంభమయ్యే ओम शांति। थैंक यू। सो किस किस को समझ में आया ये गीत? थोड़ा थोड़ा आया? ठीक है, हम देखेंगे इसमें क्या है कि इस नए साल में हम हर संकल्प शुभ ही रहे और अच्छा ही सोचें। हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी सिचुएशन का अनुसार सिचुएशन जैसा ही वैसे ही सोचते हैं। लेकिन हम इस नए साल में क्या करेंगे, हर दिन हर व्यक्ति के साथ हर सिचुएशन के साथ क्या करना है, शुभ ही सोचना है। ఉగాది పావన పర్వదినమున శుభమైన సంకల్పాలే అడుగు అడుగునా। अड़ुग अड़ुगना मीन्स हर पल हर संकल्प में हर स्टेप में हम क्या करें, शुभ संकल्प ही करें। सभी करेंगे हाँ, क्योंकि परमात्मा के सामने हम जो भी संकल्प करेंगे ना, पहले तो ये करना चाहिए कि कुछ भी बोले मैं करना ही है, मुझे करना ही है। पहले ये स्टेप हम लेना है। जब बाद में सोचेंगे कि कैसे करना, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन भगवान के सामने क्या करना है, जो भी परमात्मा सिखाते हैं हम उसको ज़रूर
पहले तो हाँ कहना चाहिए। इस साल में क्या करेंगे? शुभ संकल्प ही करेंगे, ठीक है? शुभ संकल्प ही करेंगे ना? यस। नेक्स्ट क्या है कि शुभ घड़ियले आरंभमयी। कभी कभी हम सोचते हैं 2025 इतना अच्छा नहीं था, 2026 तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि इस साल में ये हुआ था, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन हम सदा ऐसा सोचें कि 2026 नहीं है, अब ये पूरा युग जो है पूरा अच्छा ही रहता है, भले वो कैसा भी हो, मेरे लिए शुभ घड़ी ही है, शुभ घड़ी ही है, शुभ घड़ी आरंभ मेरे जीवन में है। ऐसे ही सोचेंगे तो पहले हमको वो दुख का अनुभव नहीं होता। हम क्या करते हैं, बाहर ऑलरेडी दुख समाया हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ, उसको एक एक सेकंड उस दुख को अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ, बार बार वही संकल्प रिपीट कर रही हूँ। मेरे जीवन, मेरी फैमिली में कोई दुख नहीं है, लेकिन बार बार वही सोचती रहूँ तो अभी जो शुभ घड़ी है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। इसलिए हम हर बार यही सोचें, मेरे लिए हर घड़ी शुभ घड़ी है। एक बार बोलिए, मेरे लिए हर घड़ी शुभ घड़ी है और मैं सदा अच्छा ही सोचती हूँ, शुभ ही सोचती हूँ या सोचता हूँ। और इस अंतरा में गीत में था, దివ్య గుణాలే చిగురించేలే చిరునవ్వులే మనలో చిందించేలే। इस साल में हम ये करेंगे, दिव्य गुण अपने अंदर धारण करना है। हम सोचते हैं बहुत बार मेरे अंदर भी ये गुण है तो बहुत अच्छा रहता है कि इन्होंने जो जितना अच्छा बात कर रहे हैं, मैं भी अपने जीवन में सदा इतना मधुरता से बात करूं, या तो मधुरता से व्यवहार करूं, या तो मैं सदा शांत रहूं, कभी क्रोध नहीं करूं। ऐसे फीलिंग्स आते हैं ना अपने जीवन में, लेकिन प्रैक्टिकली कभी करते हैं, कभी फेल हो जाते हैं ना। इसलिए इस साल में ये संकल्प करेंगे कि क्या संकल्प करेंगे, मैं दिव्य गुण हमेशा धारण करूं। कोई एक गुण, फॉर सपोज एक गुण हम धारण करेंगे ना, उसके पीछे पीछे सब गुण आ जाते हैं। फॉर सपोज एक वीकनेस है तो उस वीकनेस के साथ क्या होता है, सब वीकनेसेस आ जाते हैं ना। फॉर सपोज हम सोचते हैं कि अभी मेरे पास 5 मिनट का टाइम है ना, थोड़ा मोबाइल देखूं, फिर क्या करते, पहले शॉर्ट देखते। एक्चुअली आप फ़ोन उठाए किस लिए, 5 मिनट टाइम है तो कुछ मेडिटेशन करें, लेकिन सामने दिखता क्या है, कुछ शॉर्ट, फिर उसके पीछे कुछ और देखते हैं, फिर यूट्यूब खोलते, फिर आप सोचते नहीं हैं, लेकिन वो पहला स्टेप जो है मैंने उठाई ना, वही थोड़ा, इसलिए गूगल वाला कहते हैं कि आप जब भी फ़ोन उठाते हो ना, उस समय ही सोच के जाओ यूट्यूब में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, सोच के जाओ, फिर वो काम होने के बाद उस फ़ोन को साइड में रख दो। फिर एक वीकनेस है तो उसके कारण पीछे सब वीकनेसेस जैसे आ जाता है, ऐसे एक दिव्य गुण है तो उसके पीछे मल्टीपल दिव्य गुण अपने जीवन में आ जाता है। ये इस गीत में वो ही था। और उसके बाद में स्वप्नालंगी साकारम अय्ये संतोषाले अललै पोंगे। पर सपोज हम कुछ सोचते हैं ना, अगर मेरे जीवन में मैंने जो लक्ष्य रखा अगर वो हो जाए तो कितनी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है ना। इवन वो अपने बच्चों की जीवन में कहो या खुद की लाइफ में कहो, जो भी हम लक्ष्य रखते हैं अगर उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। आप लोगों में कौन कौन सोचते हैं मुझे जल्दी उठना है, सोचते हैं ना, सभी लोग सोचते हैं। अभी हमारे सामने आदरणीय शक्ति दीदी भी पहुंच के, उनको हम बहुत दिल से स्वागत करेंगे। अपनी निधि बहन शक्ति दीदी का परिचय भी देंगे। थैंक यू। अभी तक हमने जो भी गीत में सुना वो सब हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। We will give a huge round of applause again for the Vishnupriya sister and Shakti Didi. And because Ugadi, we want to learn here the spiritual significance. So we need someone very, very experienced
to throw the light on this topic, and we have Brahmakumari Shakti Didi, who is a senior Raj Yoga teacher, motivational speaker, spiritual guide, having 35 plus years of experience in spirituality, and she has dedicated her life for around past 3 decades, and she is the Hyderabad coordinator of Administrator Service Wing of Brahmakumaris and a coordinator of Shamshabad branch of Brahmakumaris. So we will listen from Didi itself, and I'll request you to give a round of applause for Didi. Thank you. थैंक यू निधि बहन आपसे बार बार तालियां बजवा रहे थे ना। चलो, एक प्रकार का अपने हाथ के सारे नस ओपन हो जाते हैं। देखो, छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, हर छोटे बात में ताली बजाते हैं, और आजकल तो यूं करते, पहले तो ऐसे ऐसे करते थे, और आजकल एक दूसरे से माँ है या बहन है या फ्रेंड्स है। तो अभी हम सबके सामने तेलुगु न्यू ईयर। हाँ, विचित्र बात ये है कि सारा विश्व का जो न्यूमेरिकल नंबर्स है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है ना, सबसे पुराने ते पुराना स्थान विश्व में है, तो जिसका इतिहास कोई को संपूर्ण रूप से मालूम ही नहीं, वो कौन सा प्रांत है या देश है जिसका इतिहास संपूर्ण रूप में कोई नहीं जानते जी? है ना, भारत है। आजकल पार्लियामेंट में वे भी चल रहा है ना, भारत का नाम भारत हो। है ना, सुने होंगे ना, भारत का नाम भारत ही हो। तो भारत का इतिहास कोई संपूर्ण रूप से जान भी नहीं सकते हैं, सिर्फ जब परमात्मा शिव आते हैं तब है। और भारत में एक विचित्र बात ये है, भारत की जो फेस्टिवल्स है, और उसमें पहला फेस्टिवल आता है ये उगादी। तो तेलुगु न्यू ईयर माना जाता है ना। तो जैसे और थोड़े दिनों के बाद तमिल न्यू ईयर आता है, फिर वैशाखी में पंजाबी न्यू ईयर आता है, ऐसे। क्योंकि भारत का जो न्यू ईयर के फेस्टिवल है वो जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा, तो इस हिसाब से ही ये टाइम साइकिल जो है, समय का चक्र चलता रहता है। तो भारत में तो पहले हर चीज़ एक्यूरेट है ना। तो अभी तो आम भारत का टाइमिंग, इंडिया टाइमिंग, यूएस टाइमिंग ऐसा होता है ना। लेकिन भारत में भी जैसे पंजाब की तरफ है या राजस्थान, थोड़ा समय का, कुछ पलों का, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस होता है, और मतलब वहाँ की प्रकृति का भी डिफरेंस होता है। उस हिसाब से भारत में एक एक स्थान में भी न्यू ईयर अलग अलग समय पर हम मनाते आए हैं। क्योंकि पहले विश्व ग्लोबलाइजेशन या ये सब नहीं था ना, तो हम सबको एक प्रकार से चलने का स्पर्धा भी नहीं था। जिस स्थान पर जैसे है वैसे वो लोग उस संस्कृति, उस समय, उस प्रकार से ही हर चीज़ चलता था। लेकिन अभी कहीं तो भी वार हो रहा है, तो है ना, पहले ज़माने के हिसाब से तो मालूम ही नहीं होता था। अगर ऐसा कोई दूर युद्ध होता तो दूसरे स्थानों पर मालूम भी नहीं होता था, है ना। क्योंकि इतना ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो या जो भी है वो मालूम नहीं होता था। इतना तक इतिहास में एक संदर्भ में वर्णन करते हैं, जब राम जी मतलब सीता का अपहरण होता है, फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, आखिर फिर पता चलता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया। फिर पहुँचना कहाँ, सीता मैया को वापस लाने लंका जाना होगा। तो जाने के लिए रास्ते के लिए कहाँ तक पहुँचते, रामेश्वरम। तो फिर वहाँ समुंदर आया, तो समुंदर रास्ता दे नहीं रहे थे। तो फिर इतिहास में बताते शिव जी की प्रार्थना करने लगा राम जी, शिवलिंग रामेश्वर लिंग का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो जब प्रार्थना कर रहे थे, बहुत उपवास, कुछ जल भी नहीं लिया, तब श्री राम जी की माँ कौशल्या, वो अयोध्या कहाँ पर है ना,
मिडिल ऑफ द भारत में रहेगा, मध्य प्रदेश में ही है ना अयोध्या, हाँ, क्योंकि हाँ उत्तर प्रदेश आजकल थोड़ा थोड़ा ये हो गया, तो उत्तर प्रदेश वो कहाँ है भारत के ये मैप में, और ये कहाँ, कौशल्या माँ को नींद से जाग जाती है कि मेरा राम को कि समुद्र से कोई समस्या है, और लक्ष्मण भरत को उठा करके पूछती है कि समुद्र तक पहुँचने का रास्ता कहाँ है, इधर यहाँ से कितना दूर है, अभी मुझे जाना है ना। तो समुद्र भी उनको दिखाई देता है, टेलीपैथी मतलब कई बार समझ में आ जाता है ना, जो संकल्प करते हैं उसका एक लंबा सब्जेक्ट है समझ लीजिए। परंतु ये जो समय का चक्र है, वो समय एक एक स्थान पर अलग अलग रूप से हम नया साल मनाते हैं, और साल का एक एक नाम दिया जाता था। भारत में तो बहुत सुंदर एक विधि है कि हर चीज़ को, हर संबंध को एक नाम होता था। आप संबंधों में ही देख लीजिए, इंग्लिश में देखे तो बस एक अंकल आंटी रहेगा, है ना। अगर हिंदी में ही अगर आप देखेंगे तो बुआ अलग होती है, सास अलग होते हैं। फिर भी तेलुगु में तो अत्तम्मा आंटे मतलब सासू माँ को भी अत्तम्मा बोलते, और बुआ को भी मतलब बोलने में वैसा मेहनत्ता बोलते, अलग बताया जाता है। पर फिर भी एक एक रिश्ते का, एक एक चीज़ की, एक एक स्थान की, एक एक विधि की बहुत सुंदर शब्दों से ही वर्णन करते थे। हर चीज़ का एक ही शब्द ऐसे कॉमन नहीं होता था। तो हर स्थान पर भी नया साल अलग अलग अपने अपने एग्जैक्टली समय के हिसाब से मनाते। ऐसे भारत में और अपना తెలుగు న్యూ ఇయర్ में ఉగాది में 60 సంవత్సరాలకి 60 పేర్లు పెట్టడం జరిగిందన్నమాట। అలాగా ఈ సంవత్సరంకి పేరేముంది, మీ అందరి ఇన్విటేషన్లు వచ్చింది, आप सबको जो निमंत्रण कार्ड दिया उसमें आ गया ना। हाँ जी, प्रभव नाम संवत्सर है ना। तो एक एक साल को एक एक नाम देते। वो किस लिए, अगर समझ लीजिए किसी का नाम समझ लीजिए, मतलब पहले ज़माने में ना बच्चे पैदा होते थे, इतना मेडिकेशन नहीं होता था, तो कोई कोई को ना धरती पर डालने से ही वो जी जाते थे। नहीं तो ऐसे कई लोगों का अनुभव है। एक का नाम था भूतल्ली, भूतल्ली अंटे बूमा है ना। तो क्यों ऐसा नाम रखा बोले तो ये उनके माँ के पेट से जितने बच्चे निकलते थे वो जिंदा नहीं होते थे, तो धरती पर डाल दिया तो वो जिंदा हो गए। तो फिर बू माता के नाम पे उनका भूतल्ली, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। तो किसी का नाम अगर भूतल्ली है तो वो भूमि पृथ्वी तो नहीं है ना, तो एक नाम है रेस्पेक्ट से, है ना। ऐसे ही संसार में इमोशंस या व्यक्ति का जो जीवन है वो एक रस में ही होता है क्या। अभी छोटे बच्चे जिनको अच्छाई बुराई मंची छड़ो ये तेलुगु वाले कितने जरा हाथ उठा, तेलुगु समझने वाले। अच्छा, जो తెలుగు समझते हैं उनको हिंदी भी समझ में आ जाता है, తెలుగు అర్థమైన వాళ్ళకి హిందీ కూడా అర్థమవుతుంది కదా। ओके, तो तेलुगु में ऐसे एक एक साल का एक एक नाम दिया गया। ऐसे 60 वर्ष को 60 नाम दिया। लेकिन ये नहीं है जो नाम है वो उसी साल में हो जाएगा। क्लियर, मतलब किसी का नाम अगर समझ लीजिए अमीर चंद रखा गया तो ज़रूरी नहीं है वो अमीर ही रहेगा, है ना। किसी का नाम कुछ भी जो भी है, तो कई लोगों का नाम ही माया है। मैं सोचूं महाराष्ट्र में बहुत लोगों का नाम, तो माया माना वो माया ही नहीं है, नेगेटिव ही नहीं है ना। इज इट क्लियर। तो नाम जो रखा जाता है उसको कहा जाता है संध्यावाचक। एक हम हर साल को नाम से बताने के लिए, तो वो जो 60 इयर्स का जो नाम है उसमें बहुत मतलब पॉजिटिव बोलने वाले शब्द भी है और नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द भी है और सुंदरता को प्रकट करने वाले शब्द भी है और अयथार्थता को, असुंदरता को बोलने वाले नाम भी है। ये सब नाम अलग अलग इसलिए है कि हर साल में हर एक का अच्छाई भी होता है बुराई भी होता है। ऐसा नहीं 365 दिन किसी के जीवन में कोई भी प्रकार का आयतार्थ कहो नेगेटिव के बदले में आयतार्थ इमोशंस नहीं होता है, ऐसा है क्या। यथार्थ इमोशंस क्या है, रियल इमोशंस क्या है,
अयथार्थ फीलिंग्स क्या है, यथार्थ भावनाएं या यथार्थ भावनाएं। तो इसलिए उगादि में बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर मनाया जाता है जी। यथार्थ भावनाएं लगभग काफ़ी आते ना, बीच बीच में रेगुलर आते ना संडे को ऐसा। तो आत्मा की यथार्थ फीलिंग्स क्या है, आत्मा का यथार्थ गुण क्या है, या हम सब हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। भले कोई भी विधि हो, आप मतलब आज हम आ रहे थे, दीपिका बहन को मैं शेयर कर रही थी, मतलब बिल्कुल मेरे ध्यान से निकल गया था। रिसेंटली हम शमशाबाद से जो गच्चीबोली आने का जो रूट है ना, उसमें अपना जो आश्रम है लगभग टुवर्ड्स राजेंद्र नगर रोड की तरफ ही है। तो हम लोग जो राजेंद्र नगर का ORR चढ़ना होता है ना, वहीं से चढ़, तो उसके बीच में हिमायत सागर का लेना रोड आता है, एडजेसेंट जो रोड है वो बहुत ब्यूटीफुल रहता। तो लगभग मैं 8-9 से 10 साल से उधर हूँ, तो वहीं से आते हैं। तो रिसेंटली वो इको हिल पार्क का ओपनिंग हुआ ना, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। अराउंड 1000 व्हीकल्स, वहाँ इतनी व्यवस्था भी बना नहीं है, इतनी हैवी ट्रैफिक जाम। इको हिल पार्क बोल करके एक रिसेंटली लास्ट थर्सडे आई थिंक 6 या 7 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसका उद्घाटन किया, तो वो ध्यान में नहीं था, और होगा तो इतनी पब्लिक होगी ध्यान नहीं था, एकदम हेवी ट्रैफिक था। तो पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। तो वहाँ का विदेशी पक्षियों को भी, क्योंकि जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था हम देखे थे, ग्लोबलाइजेशन में बेचारे पंछियों को एक है पंछी बहुत हज़ारों किलोमीटर चलकर मतलब उड़ते हुए भी अलग अलग स्थानों पर पहुँचता है ना, तो वैसा वहाँ का शायद है स्कोप कि वहाँ विदेश की पंछी भी, हम लोग बचपन में तो सुनते थे पुल्लेटी सरसो, कुल्लेटी सरस, पुलिकाट सरसो, तो वहाँ पर विदेश के पंछी भी आते ऐसे सुनते थे। तो शायद हम अपना हिमायत सागर में वैसा माहौल होगा तो वहाँ पर ऐसे बर्ड्स का भी रखे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हमको कहाँ पर कुछ भी होता है तो वो समझ में आता है, लेकिन हम जो साल का नाम देते हैं वो उसी को कहा जाता है संध्यावाचक नाम। संध्यावाचक एक होता है कर्तव्यवाचक नाम। तो संध्यावाचक माना हर साल को हम व्यक्त करने के लिए, अगर किसी को बुलाना है ना, किसी का नाम आनंद होगा तो हमेशा आनंद ही रहेंगे है ना। तो ऐसा हम साल को जो नाम देते हैं वो संध्यावाचक है, जरूरी नहीं है वो नाम के हिसाब से उसमें वही होता है। तो इस प्रकार 60 ईयर्स में 60 अलग अलग नाम होते। तो इस बार ऐसे अपना उगादि में ये साल के जो नाम है प्रभवनामा संवत्सरम के रूप में हम मना रहे हैं। और विशेष रूप में उगादि में आप भी देखेंगे तो हमारे आश्रम के पास ना एक नीम का पेड़ था। पता नहीं कोरोना के बाद क्या हुआ, वो एकदम मेरे को लगता 1% भी मुझे ग्रीनरी नहीं दिखा नीम का पेड़, और एकदम वो ड्राई हो गया। अरे मुझे लगा कि हम लोग पानी भी उसको थोड़ा वेस्ट वाटर का पहुंचने तक जाते थे, पानी भी डालते थे, तो ऐसा कैसे हो गया ऐसे सोचे। फिर मेरा आउट ऑफ स्टेशन जाना हुआ, आने तक उगादि नज़दीक आ गए ना, तो मेरे को कोई ने बताया उगादि आ रहे ना, देखेंगे इसके अंदर जान है या नहीं, अपने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि देख के तो लग रहा है कहीं पर भी वो ग्रीनरी नहीं है। तो अभी लास्ट ईयर तो उगादि में एकदम वो नीम के फ्लावर्स आ जाते हैं ना, तो इस बार उतना नहीं है, लेकिन पेड़ तो जिंदा है। तो अचानक आउट ऑफ स्टेशन ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया वो पेड़ का, फिर अभी आज मैं आते समय देखे तो एकदम टोटल ग्रीन हो गया ना। तो उगादि का जो समय होता है उसमें सब प्रकार के पेड़ में नवीनता आ जाती है। तो हमें ये बताता है ये उगादि फेस्टिवल, हमारा जीवन भी कई बार कोरोना ऐसे वैसे परिस्थितियाँ, अभी युद्ध है, ये है वो है, सबकी मन रूपी पेड़ क्या हो गया कि इसमें जान है या नहीं है, समझ में ही नहीं आ जाता है। मतलब मनुष्य आत्माओं के जीवन में खुशियाँ है ये नहीं है, खुशियाँ मनाना या नहीं मनाना वो भी समझ में नहीं आता। एक तरफ इतना युद्ध चल रहा है, बहुत अंदर से तरस आता है, और कहीं कुछ दुर्घटना, कहीं खुश है या दुखी रहे तो रहे या कारण क्या, उन सब प्रश्नों में सबका मन उलझा हुआ है ना। तो सोचना छोड़ दे,
समाधान तो मिलेगा नहीं, तो सोचना छोड़ दे। सोचे तो क्या सोचे, या छोड़ दे तो कैसे छोड़ दे। छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि हम समाज में रोज आप मोबाइल ऑन करो या व्हाट्सएप में कुछ भी देखो तो वो ही स्क्रॉल। आप नहीं भी चाहेंगे, आजकल ऐसा AI बना हुआ है आपके सामने, वो आप नहीं चाहते हुए भी सामने आ ही जाता है। तो हम उसे छूट तो सकते नहीं हैं, लेकिन उसको समझे कैसे, समाधान कैसे करें। అవి ఈరోజు కనుక మనం ఈ ఫెస్టివల్లో ఆ ప్రేరణ మనలో కలిగించుకుంటే, प्रैक्टिकल में जैसे बताया वो नीम का दिख रहा था, उसको दिमक लगा हुआ है स्टेम में, है ना। तो इस सृष्टि को भी क्या लगा हुआ है, अभिमान का दिमक। पेड़ का तो चलो फिर भी उसको मारने की दवाइयाँ भी इंसान ने निकाला, मतलब जो पेस्टिसाइड्स आदि आदि हैं, जिस किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड होता है उसकी दवाई तो निकालते, लेकिन इसके अंदर जो दिमक वो जो लगाया, वो कैसे, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करें। क्लियर हुआ। तभी जो युद्ध का कारण भी कोई अपने हिसाब से, कोई अपने हिसाब से विश्लेषण तो देते ही है, इसका दोष है, उसका दोष है, दोष किसका है, और कौन विक्टिम बन रहे हैं, कौन विजय पा रहे हैं। वो तो एक एक अपना अपना चैनल्स वाले अपना तो बताते रहते हैं ना। तो ऐसे ही कभी कभी कोई जाते हैं, हाँ, नहीं भी जाना चाहते हैं, जा कर के फंस जाते हैं। जो फंसे हुए होते हैं वो निकल के पहुंच जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ऑलरेडी वो निकलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो निकल के आ जाते। जो जाने का ही नहीं रहता है, जाके फंसे हुए हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कारण मैं ऐसे ही सोच रहे थे, हम 2-3 दिन पहले किसी के साथ रास्ते में, ऐसा होता क्यों है, मतलब किसी का समाचार सुनने में आता है ना, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था किसी का ऐसे ही सुन कर के घटना। तो उसने कहा कि दीदी हम सोचते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, पर एक इतिहास में कहानी सुनाते हैं। धर्मराज को जानते ना, यम धर्मराज, उनका कर्तव्य क्या है जान ले लेना ना, मतलब कालड़ो अंटार कदा ना। धर्मराज ही सबका प्राण, ऐसे ही दिखाते हैं ना शास्त्रों में। तो एक बहुत बड़ा पार्टी चल रहा था देवताओं के, तो उसमें महाविष्णु को लेकर के गरुड़ पहुँचे। गरुड़ पक्षी है ना, तो उस पार्टी में मतलब महाविष्णु अंदर चले गए, गरुड़ बाहर इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ एक छोटी सी पंछी, चिड़िया, तो हम लोगों को भी चिड़ियाओं को देखते अच्छा लगता है ना, अभी इको पार्क इसलिए तो भर गए। तो वो चिड़िया को देख करके गरुड़ में भी बहुत अच्छा सा उनके साथ बातचीत करने का, तो दोनों आपस में बात करते, फ्रेंड्स हो गए। और उतने में वहाँ से उस पार्टी में आ जाते यम धर्मराज। तो आते आते उनकी नज़र गई और छोटी सी चिड़िया पर, चिड़िया बर्ड, स्मॉल बर्ड, చిన్న పక్షి. యమధర్మరాజు కూడా పార్టీలోకి వస్తాడు అన్నట్టు. ఇక్కడ గరుడేమో మహావిష్ణువుని పార్టీకి తీసుకొచ్చారు, కార్యక్రమం జరుగుతుంది, దేవతల సమ్మేళనం. అందులో మహావిష్ణువు గరుడ వాహనం చూపిస్తారు కదా విష్ణుదేవుడికి. సో విష్ణుదేవుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పక్షితో ఈ గరుడుడికి ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోయింది అన్నట్టు. ఆ చిన్న పక్షిని అంటే అది అటువైపు ఉంటుంది, గరుడు ఇటువైపు ఉంటాడు, పిచ్చుక. సో ఆ పిచ్చుకల్లో కూడా చిన్న పిచ్చుక ఉంటుంది చూడండి, చిన్నది అన్నట్టు. మనం పిట్ట అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, పిచ్చుకనేమో మరీ చిన్నగా ఉంటుంది. तो धर्मराज उस पार्टी के अंदर जाते जाते वो छोटा सा जो चिड़िया है उसको देख कर के एक सेकंड दंग रह जाता, देखता, हंस के चला जाता. और वो कौन ऑब्जर्व किया, అది గమనించింది గరుడు. और उतना 2-3 मिनट की वार्तालाप में गरुड़ पक्षी को वो छोटी चिड़िया से पिचका तो स्नेह ఏర్పడింది కదా. तो उनको मालूम है ना गरुड़ को, यम धर्मराज की नज़र जिस पर पड़ी उनकी समय पूरा हो गया. तो उनको लगेगा कि धर्मराज ने इनके ऊपर, धर्मराज ఈ పిచ్చుకని చూసి ఈ పిచ్చుకి ఇంకా పోతుంది, నేను కాపాడాలి, सो मैं उनको बचाना सोच करके फिर वो जैसे ही धर्मराज पार्टी के अंदर चला जाता है तो ये गरुड़ क्या करते, वो पिचका చాలా చిన్నది अपने चोंच से उसको अच्छी सरल से पकड़ करके
वहाँ से दूर ले जाता है जहाँ धर्मराज की नज़र ना पड़े ना, दूर इंका अनुकोंडि मन नल्लमल अडवलोकी अपने पास। वो कहाँ तो भी वो पार्टी चल रहा था, समझ लो उत्तर भारत देश में रहते, दक्षिण भारत में उसको ले आया, ले आके फिर वापस वहाँ पर बैठ गया। तो थोड़ी देर కొంచెం సేపు కూర్చున్న తర్వాత पार्टी पूर्ति అయిపోయింది, मतलब प्रोग्राम पूरा हो गया तो सब बाहर निकल रहे थे। तो पहले धर्मराज निकला तो धर्मराज की नज़र वो चिड़िया की तरफ देख रहे थे, चिड़िया तो था नहीं ना वहाँ, अच्छा इधर नहीं है, देख रहा था। तो फिर गरुड़ ने उसको देखा तो गरुड़ कहता है देखो मैंने आज इतना अच्छा काम किया कि वो आप क्यों हंस रहे, पूछता है। तो धर्मराज बोलते नहीं मैं हंस नहीं रहा, नहीं आप जाते समय चिड़िया को देख कर के हंसा मैंने देखा। तो वो कुछ नहीं बोलता है, गंभीर रहता है। तो फिर पूछा नहीं आप बताओ क्यों आप वो चिड़िया को देख कर के हंस रहे। तो फिर उसने कहा कि मैं जब पार्टी में जा रहा था तो वो चिड़िया मेरे जो सामने थे, मेरे हर एक के उनको मालूम पड़ जाता है, ऐसे इतिहास में बताते हैं ना हर एक का समय कब पूरा होने वाला है। तो इस चिड़िया का जो मृत्यु है नल्लामल्ला जंगल में सांप के मुख में इस चिड़िया को मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा ये छोटी सी चिड़िया नल्लामल्ला तक पहुँचेगा कैसा। तो फिर गरुड़ को शौक हो जाता तो यथार्थ रूप में गरुड़ ने उनको बचाने के लिए कहाँ ले गया, लेकिन उसका लिखा हुआ मृत्यु कहाँ। मैं ये सोच के हैरान हो रहा था ये चिड़िया यहाँ है लेकिन इसकी मृत्यु मैं वहाँ देख रहा हूँ, इसलिए हंसा। तो उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मेरे कारण ही चिड़िया की, पहले तो उनके साथ प्रीत हो गया। तो फिर श्रीमन नारायण आ जाता, उनका गरुड़ वाहन है, तो उनसे रहा नहीं गया कि भगवान से वो पूछते कि आज मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया कि मैं उस चिड़िया को बचाने के लिए ले गया था, लेकिन उनका वहाँ तो मेरे कारण ही ये हुआ, मुझे वो बहुत दुख है कि నేను ఒకవేళ అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళకపోతే ఆ పక్షి బతికేది కదా, నేను ఒకవేళ నా చేతితో తీసుకోకపోతే ఆ పక్షి బతికేది, నేనే ఆ పక్షి మృత్యుకి కారణమైనా। तब महाविष्णु को बताते ये विधि का विधान है, वो विधि है, आप नहीं तो कोई और कारण बनेगा, लेकिन जो जिस समय जैसा जब होना होगा वो, कि हम सोचते हैं ना इजराइल का वार का कारण ये है वो है ऐसा है वैसा है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको रोकने की कोशिश ना करें, वो बात इसके पीछे नहीं है। लेकिन कई चीज़ें अभी देखिए, कोई चीज़ ऐसा होता है हम सब शांति से, हर देश वाले शांति से बैठे, और कहाँ पर तो इतनी बड़ी तूफान आई, सुनामी आया ना। तो अगर मानवता में वो अभी समय का परिवर्तन है, मतलब ये जो हम दुख का समय देख रहे हैं ये परिवर्तन हो करके सुख का समय नज़दीक आने वाला है। अभी जैसे खेती भी करते हैं ना, तो खेती के बाद अगर उस खेती निकालने के बाद वो किसान क्या करता है, एक बार पूरा जला देता है। अगर समझ लो जला नहीं दिया, दूसरा बीज बोएगा तो क्या होगा, ये भी बीज आएगा, पहले वाला बीज भी, उससे भी पौधे निकलते हैं। तो उसके धरती के अंदर जो मतलब ताकत की चीज़ें जो है वो दोनों में होने के कारण फसल सही नहीं आता है, तो उसको जलाएंगे तभी नया फसल मंची वस्तुदे अच्छा आएगा, नहीं तो आएगा लेकिन इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये धरती भी फिर से सुंदर दुनिया बनाना है, समय नया आएगा, नवयुग आएगा, लेकिन उसके पहले हम जो भी हमारे सामने हो रहे हैं ना, तो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने नाम का बताया, संध्यावाचक है, 60 इयर्स का नाम 60 अलग अलग नामों से बताया जाता है। उसमें अच्छे नाम भी है, नेगेटिव को बोलने वाले शब्द जैसे क्रोधाग्नि नाम संवत्सरम, ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अशुभ
बोल होते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान सब होता है द्वापर युग से। सतयुग में ये शब्द भी नहीं होंगे, अशुभ शब्द भी नहीं होगा, वहाँ का नाम भी नहीं होंगे। मतलब उस युग की विधि विधान ही अलग प्रकार से रहता है। वो ऐसा विधि विधान बनाने के लिए भगवान ने हर एक के हाथ में संकल्प दिया है। संकल्प इतना बड़ा शस्त्र है। लेकिन जैसे देख लीजिए, साइंस का ही समझ लीजिए ना, या ऑटोमेटिक से जो भी चलते हैं, तो वो एक बार आप उसको प्रोग्रामिंग देने के बाद आप भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप भी उस चीज़ को समझ करके ही चलना है। तो ऐसा हमारे संकल्पों में इतनी ताकत परमात्मा ने दिया, उस संकल्प से आप जो सोचते हैं वो होगा ज़रूर। लेकिन संकल्पों को अपने सीमा में रखने का, संकल्पों को अपने नियंत्रण में रखने की जो चीज़ है वो राजयोग है। तो इस नवयुग में युगादि जो आ रहे हैं, हमारा सामने नया साल, तो इस नए साल में अभी देखा जाए तो रमज़ान में अगर आप मतलब शमशाबाद से ओल्ड सिटी का जो रास्ता, ओल्ड सिटी में जो ब्रांच है, तो वहाँ से सेवाएं करते करते वो शमशाबाद ब्रांच खुला। तो हमारा ओल्ड सिटी में काफ़ी बार आना जाना होता है। इतना दान पुण्य के कार्यक्रम चलते हैं। जैसे गणेश के समय पर दान पुण्य चलता है ना, विसर्जन के दिन भी कोई कुछ खिलाएंगे, कोई कुछ खिलाएंगे, पानी का। ऐसे जनरली रमज़ान मास में सच्चे जो कुरान को मानने वाले, वो युद्ध की बात तो छोड़ो, शब्द भी नहीं निकालते। मतलब रमज़ान को वो लोग इतना पवित्र मास मानते हैं, तो उस समय वो कोई भी प्रकार का नेगेटिव नहीं करते हैं। रमज़ान के टाइम पे दान पुण्य, एक दूसरे को सहयोग देना, जो जैसे हिंदू साल में एक अधिक मास आता है ना, अधिक मास में बहुत अच्छे अच्छे कार्य ही किया करते, तो उस प्रकार वैसा ही उनकी मान्यता है, वैसा ही करते हैं। लेकिन अभी फिर युद्ध माना, धर्म को मान रहे कि नहीं मान रहे? अगर धर्म को मानते तो रमज़ान मास में तो नहीं छेड़ते ना, वो भावनाएं नहीं होते। तो इस धरती में, इस भूमंडल पर सब प्रकार के जीव जंतु है ना। तो एक एक प्रकार का, जैसे समझ लीजिए जानवरों में भी उनका खाने पीने का समय, आप घर में अगर कुत्ते को पाले होंगे तो ऑब्जर्व करना, उनका पेट भरने के बाद वो दूसरा आप कुछ भी दो खाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। उनका खाने का टाइम जो मुकर्रर होता है, बस जो भी जानवर है। और कोई भी प्रकार का अगर मतलब नेचुरल क्लैमिटीज़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कैच पहले कौन करते? जानवर ही करते हैं। एक तो उनका ऑडिबल जो रेंज है वो भी ज़्यादा होता है, और उससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द साइंस और अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअलिटी वो सोचते नहीं हैं। इज इट क्लियर? सोचते नहीं है, इसलिए उनको जो हो रहा है वो समझ में आता है। सोचना ज़्यादा होने के कारण जो समझने की नॉर्मल पावर है, मतलब जब हर एक क्रीचर को भगवान ने जब बनाया, जंतु से लेकर के इंसान तक, क्योंकि एक इंसान ही है जो विवेकशील है, सबसे ज़्यादा समझदार, हर एक जंतु को अपना हिसाब से दिया, और सबसे ऊंच जीवी मनुष्य है। सब एनिमल्स में ह्यूमन एनिमल जो है सबसे ज़्यादा, जैसे एनिमल्स में विजडम एनिमल एलिफेंट को कहा जाता है ना, तो उसी प्रकार इंसान को सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे बेसमझ का काम कौन कर रहे हैं? అందుకని చెప్తారు కదా తెలుగులో, అతి వివేకం ధూర్త లక్ష్మి, అతి తెలివి ధూర్త లక్ష్మి, అట్లా చెప్తారు కదా। मतलब हम उस विवेक ने जो ईश्वर ने दिया उसको क्या किया, क्योंकि वो विवेक इसलिए ज़्यादा दिया है, मतलब ये आप समझने की कोशिश करना, जो अभी विश्व में जिस भी प्रकार का हो रहा है,
अगर हम सब सामूहिक रूप में शुद्ध संकल्प, अच्छा संकल्प करेंगे, हम कोई भी विश्व युद्ध को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और जो वर्तमान समय जिस भी देश का जो निमित्त है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है, और वो भी मतलब यथा राजा तथा प्रजा ऐसे मान्यता है ना, तो जैसे प्रजा वैसे राजा। अभी कोई भी मतलब जिस स्थान का भी मिनिस्टर होगा वो प्रजा के हितेश में नहीं करेगा तो वो परिवर्तन तो हो जाता है। आजकल परिवर्तन का इतना ज़्यादा है। हम कुछ दिन पहले गोदावरी कने गए थे, वहाँ न्यू इलेक्टेड कारपोरेटर्स और मेयर का फेलिस्टेशन कार्यक्रम रखे थे। और इस साल ब्रह्मा कुमारी इसका जो है इंटरनेशनल हमारा 1 साल का थीम होता है, तो फेथ और विश्व वर्ल्ड यूनिटी और फेथ के ऊपर इस साल को हम मना रहे हैं, विश्व एकता और विश्वास। तो एक साल में एक थीम रहता है। तो उसमें एक लेडी कारपोरेटर आई थी, वो बता रही थी अपना संकल्प करने से कैसे होता है। तो उन्होंने जब कॉन्टेस्ट के लिए खड़ी हुई तो उनके जो अपोजिशन लीडर था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत अनुभवी और वेल्दी रिच भी है। तो एक संकल्प तो मुझे आया कि मैं खड़ा हूँ मतलब निलबड़ाला उद्दा मतलब पोटी मतलब कॉन्टेस्ट में खड़े हो जाऊँ कि नहीं, ऐसा संकल्प आया। फिर दूसरे दिन उन्होंने 2-4 इतिहास के पन्ने पढ़ी, शायद रिसेंट इलेक्शंस में भी कहीं कहीं ऐसा हुआ ना, जो पुराना लीडर को भी फर्स्ट नया जो व्यक्ति है वो भी हराया। जैसे बिहार में एक यंग लेडी भी ऐसे हुआ, छोटी गायक थी वो बच्ची, हाँ, तो उस प्रकार का उनको सब प्रेरणा मिला तो वो खड़ी हो गई और वो जीत गई। और उनको पॉलिटिक्स का ABCD नहीं मालूम, पर उनको संकल्प है मैं जनता को कुछ करूं, कि अब मतलब उनके बच्चे बड़े हो गए। आजकल मिडिल एज वालों में भी एक उमंग है ना, अभी बच्चों को बड़ा किया हम कुछ करें। तो ऐसा संकल्प आया और वो खड़ी हो गई और जीत भी गई। तो मेडिटेशन सेंटर में आकर उनको बहुत अच्छा लगा। बाकी सब तो 40 मिनट्स 1 आवर 1.5 आवर ऐसा अटेंड करके चले गए थे, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम की एंड तक भोजन करने के बावजूद भी कुछ कार्यक्रम चल रहे थे तो पूर्ण रूप तक बैठे रहे। तो हमारा संकल्प ये हो रहा है तो ये समाज ऐसे ही चलेगा, वो हमें संकल्प नहीं करना। एक है थॉट इटसेल्फ इज ए बिगेस्ट ट्रेजर फॉर एवरी इंडिविजुअल। धन किसी के पास होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, होगा तो सबके पास ज़रूर, लेकिन कम ज़्यादा होगा। सुंदरता भी, स्किल्स भी, ये सब वेरिएशन हो सकता है, बट थॉट एनर्जी भगवान ने सबको सोचने की शक्ति इक्वल दिया है। एनर्जी ट्रेजर, थॉट्स आर द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर एवरी इंडिविजुअल। सबसे बड़ी संपत्ति है संकल्पों की। तो इस उगादि के शुभ अवसर पर हम सब इस संपत्ति को सही सलामत यूज कर। वी हैव टू गिव प्रॉपर चैनल। व्हाट इज मेडिटेशन? चैनलाइजिंग अवर थॉट्स इज द मेडिटेशन। तो आप विश्व हितेश में, अपने फेवर में, आपकी फैमिली फेवर में, आपका स्थान, देश, विश्व, संकल्पों को वेस्ट नहीं करना। होगा ज़रूर, बट ध्यान रखना, अटेंशन। वो इतना आसान नहीं है। इसलिए वो कहावत है ना, मन जीते जगत जीत। अगर आप अपने मन को जीत लिया तो विश्व को जीत लिया समझ लो। कठिन भी नहीं है पर इजी भी नहीं है। इजी है बट व्हेन अटेंशन, ध्यान रखेंगे तो सहज है, ध्यान नहीं है तो फंस जाएंगे, संकल्पों के उसमें ही फंस जाते हैं। अरे इतनी दुर्घटनाएं हो रहे हैं कि देख करके, न्यूज़ सुन करके कहाँ पर जा रहा है इंसान। अपनी विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिजिकली फिट है, फाइनेंशियली है तो बात मत पूछो, अच्छे है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है।
पहले ज़माने में क्या होता था, कोई परिस्थिति आती है, मतलब कैसे अपना जीवन को बनाए करते थे। प्रॉब्लम्स आया माना, और प्रॉब्लम के टाइम पे थोड़ा अपसेट हो जाते थे, प्रॉब्लम के बाद ठीक। और कई ऐसे होते थे, प्रॉब्लम तो आएंगे ही, हमें क्यों दुखी होना, उसको तो पार करना ही है। अगर बुखार आया, जो भी आया, तो शांति से उसको पार करके जाते थे, अशांति को आने ही नहीं देते थे। एक तो प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लमेटिक ना बनना, वो लाइफस्टाइल था। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स है तो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। अभी प्रॉब्लम नहीं है तो भी प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं, नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम। अभी आज भी क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, ग्रीडीनेस ही प्रॉब्लम है। मतलब सब कुछ है, संतुष्टता नहीं है। सुइसाइडल टेंडेंसी पहले बताए जाते थे, रिचेस्ट वर्ल्ड अमेरिका है, वहाँ पर ज़्यादा होता था। अभी तो मुझे नहीं मालूम अभी क्या कौन सी देश में वो चल रहा है। अपने देश में तो सुन करके ये हैरान लगता। अपना देश जो थोड़ा, अपना हैदराबाद में भी कितनी दुर्घटनाएं सुनने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल फिट है, रिलेटिव्स में भी सब सेटिस्फाइड है, सब कुछ है, फिर भी सुइसाइड। इतना क्या हुआ है? अपना विचार। मतलब हम जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, बढ़ाते रहते। ये फाइनेंस जो है ना, सबसे बड़ी संपत्ति है विचारों की। उसका प्लान राजयोगा मेडिटेशन है, वो उस हिसाब से हम कभी चले। कई लोग मैं देखती हूँ शमशाबाद में भी, इतने आते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन समझकर चलना नहीं चाहते। डॉक्टर का नाम सुना, बहुत अच्छा है, गए भी, आप कंसल्टेशन फीस भी भरे, प्रिस्क्रिप्शन भी लिए, दवाई भी खरीदा और कबोर्ड में पड़ा रहा, तो बीमार कम होगी क्या? मैं तो इतना बड़े डॉक्टर को दिखाए बड़े डॉक्टर को, लेकिन दवाई का क्या है? आप जब तक उसकी दवाई की या प्रिस्क्रिप्शन जो भी है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारी छूटेगी क्या? आप मेडिटेशन सेंटर में आए, बहुत प्यार से सुने, और यहाँ पर भी आपको एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि कब उठना है, कब सोना है, कैसे अपनी विचारधारा को अपनाना है। लेकिन आप जाकर के वो कबोर्ड में रख दिए, फिर अगले संडे आएगा तो देखेंगे, और संडे में भी कुछ शादी वादी है तो फिर नेक्स्ट संडे, फिर एक हफ्ते का कितना लोड होगा। आप एक दिन भी सवेरे झाड़ू कर, हमारा आश्रम में चारों तरफ ना थोड़ा नए कंस्ट्रक्शंस बन रहे, तो और सीमेंट की डस्ट इतनी होती है, आप सवेरे भी झाड़ू पोछा करेंगे ना, शाम तक लगेगा हमने सवेरे झाड़ू किया है क्या ऐसा लगेगा, उतना धूल ना। बाहर कंस्ट्रक्शंस होते तो उतना धूल। और अभी वर्तमान समय हमारे मन में इतनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अननेसेसरी डाटा अगर आप फ़ोन में क्लियर नहीं करेंगे तो आपका कितना अच्छा भी फ़ोन हो वो स्लो ही हो जाता है। तो ये मन की बात क्या है आपका फ़ोन का, तो आपको समझ में आ जाता है। साल में एक बार या 2 साल को एक बार बदल देते हो। ये शरीर बदल जाता है क्या? साल में एक बार बदलता है क्या? नहीं। तो उसमें तो हम अननेसेसरी डाटा भरते जाते, उसको डिलीट करने का तो फुर्सत ही नहीं है। तो फिर हम प्रॉब्लम्स का सोचते, डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो ऐप्स क्या हो गए, नीचे ऊपर होने लगेंगे, और उसमें हीट ज़्यादा होता है तो दिमाग भी गर्म होगा, ज़्यादा डाटा हो गया तो हमारा व्यवहार भी, जहाँ खुश रहे ना वहाँ रोने लगते, जहाँ रोना है वहाँ क्या करते नहीं मालूम काम रह जाते, डिप्रेस हो जाते या शॉक में हो जाते। एक मुझे कल एक माता सुना रही, वो इतनी शॉक में चली गई, कहते बोलना भी बंद हो गया और बड़े नशे से बोल रही है। फिर वो सोची, वो 15 साल पहले मेडिटेशन सेंटर गई, उसके बाद उनके घर से थोड़ा दूर है मेडिटेशन सेंटर, तो मैंने जाना छोड़ दिया। तो मेरी बेटी वहाँ चली गई पढ़ने के लिए अमेरिका, तो मैं शॉक में आ गई, मेरा गला बोलना ही बंद हो गया। फिर वो आ करके फिर उपचार करी, डॉक्टर्स को दिखाया आदि, उसके बाद बोलना आ गया। मतलब वो क्या हो जाता है दुख में इंसान को, मैं ये कह रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या क्या हो जाता है। शौक में जाना क्यों? समय के हिसाब से समझो ना, बच्चे बड़े। और इतने लोगों का अनुभव है। मैं एक लेडी यहीं पर ही आते थे, अभी नहीं है वो,
80 ईयर्स तक, शायद 85 तक जिंदा रहे। दोनों बेटियां फॉरेन में हैं। तो आती थी, परमात्मा मेरा बेटा है, इतनी खुश। और वो हर हफ्ते में अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो सुनाएंगे, दीदी मेरे को बाबा ऐसा मदद करे, ऐसा मदद करे, कि उनके बच्चों तक उनके युगल के नी रिप्लेसमेंट हुआ। तो भी जो हेल्प करते उनको 2-4 को बताए यहाँ, बाकी सबको बताए नहीं, क्योंकि वो आएंगे, ये आएंगे, रोएंगे, और बच्चे वहाँ है, आ तो सकते नहीं है, और दिन में 10 बार फ़ोन करके और तंग करते, मैं इनको भी देखूँ या उनका फ़ोन अटेंड करूँ। पर सब ठीक ठाक हो गए, घर में डिस्चार्ज होके आ गए, तब जाके बच्चों को बताया कि पापा का नीस का रिप्लेसमेंट हो गया। कि जीवन में कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करना होगा। परेशान होते रहेंगे तो कभी गला बंद होगा, कभी कुछ। मेरे को आश्चर्य लगा, शॉक में गला बंद हो जाता है। कल वो शेयर कर रहे थे, और वो इतनी बेचारी डिप्रेस में थी। मैं समझती हूँ जो उनके सामने बैठे उनकी पेशेंट्स को 20 टाइम्स तो वही बात रिपीट कर मतलब शॉक में उनका वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ऐसे दिमाग में हम क्या क्या भर के रखे हैं। और वो खुद इतना बोलने के बाद बोलती, दीदी मुझे समाधान भी मालूम है, रोज सेंटर में आके मुरली सुन के योग करेंगे ना तो ठीक हो जाती हूँ। उपचार भी मालूम है, पर करना किसको? खुद करेंगे तो होगा, या जो करेगा सो पाएंगे, जैसे करेंगे वैसे, जितना करेंगे। तो इस उगादि में हम अपनी जो विचारों की संपत्ति है, उस संपत्ति को सही सलामत यूज करना है। अब एक दिन अपने संकल्पों पर ध्यान दीजिए, एक ही दिन, एक दिन, फिर एक दिन होने के बाद फिर करो, नेक्स्ट डे भी मुझे करना है। आप एक हफ्ता 10 दिन का मत रखो, वो नहीं होगा। अब एक ही दिन का रखो, आज का दिन में सदा खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई डांट रहे, कोई कुछ कर रहे, तो भी मुझे पेशेंसली उसको पॉजिटिव रूप में ही अप्रोच करना है। रिएक्ट टू रिस्पॉन्स, मुझे सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, बट रिएक्ट एक ही दिन का रखो होमवर्क। वो एक दिन कब होगा? कल एक दिन, फिर कल क्या सोचो, कल एक दिन, धीरे धीरे ऐसा आदत का नुकसान नहीं है ना, अपना फायदा ही है ना। एक दिन में अपने स्थिति को एकदम अच्छा रखना है। करेंगे कल, आज शाम से फिर कल शाम तक, फिर कल शाम को सोचो कल भी करेंगे। एक दिन का ही रखो और एक दिन ऑब्जर्व करो। एक दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं एक हफ्ता रखूंगी बोले तो वो ऑब्जर्वेशन खत्म ही हो जाएगा। कब करेंगे? एक दिन। हाँ, हम अपने विचार पर फोकस कर। जैसे बजट आता है, आपके मंथली सैलरी आती है, तो ध्यान रखते तो मंथ एंडिंग तक रहेगा। आप ध्यान नहीं रखेंगे तो 10 दिन में ही खत्म होगा, समझ में ही नहीं आएगा कैसे खत्म हो गया। लेकिन आप ईच एंड एवरी पेमेंट और बैलेंस हर रोज चेक कर रहे तो ना, कईयों को हो जाता है, आज स्वाइप कर लेते या पेटीएम से फॉरवर्ड कर लेते, मतलब 50,000 है समझ लीजिए आपका सैलरी, तो कुछ खरीद लिया, मंथली दूध का हो गया 5,000, सब्जियों का हो गया 2,000, गैस का हो गया, ये ऐसे करें आप सोचे अप्रोक्सीमेटली 20 होगा, तो करते गए आप बैलेंस ही तो कई बार 5,000 ही रह जाता है। 45 तो कैसे पेमेंट करें समझ में भी नहीं आ जाता। और ध्यान रखेंगे तो आप देखो, ध्यान रखेंगे तो बचेगा कि नहीं बचेगा? जरूर बचेगा। हम छोटी छोटी मतलब अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर सकते। तो विचारों को भी, अगर किसी ने कुछ कह दिया, चलो जाने दो ना, हो गया, अभी क्यों सोचना है, हो गया। तो हम अपने मन को, जैसे यहाँ पर रोज की सत्संग होती है, वो उसका मेन पर्पस यही रहता है, मॉर्निंग अगर हमारा मन अच्छे विचारों से भरपूर रहता है तो हम सारा दिन उस विचारों के साथ अपनी दिनचर्या होती है। तो ये उगादी साल में विशेष रूप में एक नए वस्त्र पहनते हैं। तो आत्मा का नया वस्त्र तो शरीर है। तो आजकल ना, जैसे मैंने कहा, नीम के पेड़ का एकदम सूखा हुआ था नया, तो विचारों से बॉडी भी रिजुवनेट होता है, वो शक्ति मन के अंदर है। तो वो एक हमें एक्सेप्ट करना है। नए विचार जब होगा तो आपको नया जीवन
कल मतलब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती कैसे होता है। हमारे दीदी का तो आपने सब सुना ही होगा, इतना कैंसर का मतलब क्रिटिकल कंडीशन था और उन्होंने अपने योग बल से विजय प्राप्त कर लिया। कल काटेदान में एक फैमिली, उनका जो जीवन में जो भी हुआ है उसका मतलब वो बहन बोलती इनको मालूम नहीं था, शादी के पहले ही वो विटामिन इंजेक्शन से जो भी है उनको एड्स था और इसने शादी की तो इनको भी एड्स आ गया और फॉर्चुनेटली बच्ची भी पैदा हुआ, लेकिन बच्ची को एड्स नहीं है, वो दोनों को है, पति और पत्नी दोनों को है। तो वो इतने परिवार वाले परेशान हो गए, अभी एड्स तो जान लेने वाली बीमारी है, करे क्या। तब वो बहुत दुखी थे, तो किसी ने उनको कहा कि मेडिटेशन सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, आप जाओ। तो फिर वो लोग एक ही दिन सुने और इतना सिंसियरली उन्होंने अपने लाइफ में उतारा। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त समय का मेडिटेशन रहता कि 4 to 4:45 वो, और संध्या समय का, और जो रेगुलर डिस्कोर्स मुरली होती है, मुरली क्लास जिसको कहते हैं, रेगुलर उस दिन से लेकर, और उस समय उनको डॉक्टर ने कहा मैक्सिमम आप 6 साल जिएंगे। तो अभी इस मेडिटेशन में आकर के मतलब पता चलने के कुछ समय के बाद जुड़े हैं, 13 साल हो गया, कल वो बता रहे थे। और बीच में 4 years बैक डॉक्टर चेकअप तो होता है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो सारा चेकअप उनका चल रहा था। और मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, पूरी ही समझ सकते हैं, मिडिल हायर मिडिल तो है नहीं, मिडिल भी नहीं है, लोअर मिडिल पूर कैटेगरी में उनका लाइफस्टाइल चलता। तो 3 साल पहले उनकी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, दीदी सारा चेकअप कराए और मम्मी का पापा का 100% एड्स फ्री बॉडी है। अभी उनके शरीर में एड्स का 0.001% भी उनके शरीर में नहीं है। ताली तो बजाओ भाई। तो डॉक्टर्स देख करके हैरान हो गए कि आप कैसे उसको जीत लिए। हाँ, उनके पूरे कम्युनिटी में उनको मालूम है सबको, ये लोग मरने वाले, ये लोग मरने वाले। इनके साथ उस मोहल्ले में जिस किसी काटेदान एरिया है, वो लोगों की भी डेथ हो गई। लोग सोचे, पर ये लोग सोचे अभी जीवन तो मरा है। और उनका एक विशेषता है, जब भी उनको ऐसा लगता है, आश्रम में ब्रह्मा भोजन लगाते हैं हम लोग, तो उनको कहीं तो भी ब्रह्मा भोजन खाया, तब से उनको ताकत महसूस हुआ, क्योंकि उनका रिलेटिव सिटी के अलग अलग स्थानों पर है। तो कहीं दूसरे स्थान पर ये नॉलेज को अडॉप्ट करें, शमशाबाद नज़दीक है तो वहाँ से फिर रेगुलर उनका मेडिटेशन प्रैक्टिस चलता है। तो वहाँ पर उन्होंने ये मेडिटेशन का शुरू किया, अभ्यास करना। तो अभी इतना अच्छा हो गया, एक बार तो आप देखेंगे तो वो उनकी माँ लेडी जो थी, डेड बॉडी ही लगता था। तो जब भी उनको ऐसा लगता है, आश्रम में ब्रह्मा भोजन लगवा के सबको खिलवाते थे, और 4था दिन खड़ी हो जाती थी। आज लगाया मतलब उनकी भावना, भगवान के लिए कहते हैं ना भावना का, तो मतलब ब्राह्मण जो यहाँ आश्रम में जो आते हैं, वो अपने जीवन को थोड़ा, देवताएं संयम होते हैं ना, तो वो फॉलो करते हैं। जैसे दुर्गा माँ को हम कभी जो भोग में लहसुन प्याज नहीं चढ़ाते ना, कभी भी ऐसे चातुर्मास दीक्षा होता है, देवी के जो भी पदार्थ बनते उसमें लहसुन प्याज नहीं। तो यहाँ पर देवता युग लाना है, देवताई चलन चलनी है, तो वो भोजन में नहीं रहता। तो ऐसा जो नियम में फॉलो करने वालों को खिलाने में बहुत पुण्य है, ऐसा उन्होंने सुना। तो उन्होंने जब भी ऐसा करते तो उनको ठीक होता। ऐसा एक कोई भी एक चीज़, कोई कुछ करते हैं ना। और अपनी जीवन में जो भी है हमारे जो प्रिंसिपल्स, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, संध्या समय का ध्यान, और रेगुलर ये मुरली का क्लास, जो रेगुलर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स को, ये सब करने से, और वो ये तो मेरे को माता ने अनुभव सुनाया। कल वो भाई सुना रहा था कि आप लोग आश्चर्य खाएंगे। बीच में मैं ऐसे ही बोली थी, भैया अगर ज़मीन खरीदना है तो आपका जहाँ बिजनेस है वहीं पर ले लो ना। दीदी इस जीवन में तो मैं सोच भी नहीं सकता इतना महंगा है, मतलब उनकी कैपेसिटी से। तो कल वो बता रहा था, मेरा जो लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस था 0, बस आया और खाया, उस दिन उतना ही होता था। और मेरे को ही आज समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा घर कैसे खड़ा किया। छोटा ही, आई थिंक 140 या 150 स्क्वायर यार्ड्स, और उसके अंदर रेंट का एक सिंगल बेडरूम पोर्शन जो बनाया, और मेडिटेशन सेंटर के लिए 2 रूम्स, एक मतलब रेगुलर डिस्कोर्स का, 1 अटैच्ड बाथरूम का, 1 BHK होता है ना, तो उतना आश्रम के लिए भी दिया।
कि अब पूरा नहीं हुआ, अभी और 10-15 दिन लगेगा, और ऊपर वो लोग रहने के लिए भी बनाए। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसमें एक दे रहे, ऐसा नहीं है। मतलब कई लोग सोचते हैं ना इतना बड़ा है तो कोई तो ऐसा देने वाले होते हैं। तो परमात्मा के ईश्वरीय कार्यों में जिनको दिल होता है, और ईश्वर को क्या कहते हैं, गरीब निवाजी कहते हैं ना, तो जिनके अंदर महसूस होता है वो यही बोलते कि हमको परमात्मा ने ही ये जीवन दिया कि अभी हम ऐसा कोई भी गलती कुछ भी हो करना ही नहीं है। जो पास्ट हो गया वो हो गया। वो अपना फोटोज दिखाता है कि कोई सोच सकते ये अभी जिंदा है, ऐसा था दीदी, और अभी कोई सोच नहीं सकते इनको देख करके कभी कोई बीमारी थी इनमें। इतना एकदम एक्टिव, अलर्ट, हेल्दी, स्वस्थ, और इतना हार्ड वर्किंग। और वो बोलते एक दिन भी अगर मेरा ब्रह्म मुहूर्त का मिस हो गया, मेडिटेशन का ध्यान अगर मिस हो गया, मुझे समझ में आ जाता है, और वो दिन इतना थक जाता हूँ जैसे कि मैंने जीवन में बहुत कुछ पहाड़ तोड़ा। इतना थक जाता हूँ। तो अभी भी मुझे जो चला रहे हैं वो कौन सी शक्ति है? ईश्वर मेरा साथ है, ऐसा वो संकल्प शक्ति है ना। तो अपने संकल्पों से ही अपना शरीर के और संबंधों के और सब ठीक हो जाता है। तो ये उगादी में हम सब ये अपना जो विचारों की रूटीन रखनी है, और ये नहीं हो सकता है कि ये युद्ध रुकेगा नहीं, चलेगा तो चलेगा, क्योंकि ये जो विधि बना हुआ है ना सृष्टि के परिवर्तन की, ये कोई रोक नहीं सकते। परंतु ये है हम सारे विश्व के लिए हम अपना शुभ संकल्प करना, कभी सोचना नहीं। परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन दुखी होकर के क्यों परिवर्तन होना? ये क्लियर हुआ कि अभी कई बार कोई बहुत दुखी होते हैं तो देखने वालों को ही लगता है इस दुख से तो बेहतर है भगवान इसको मुक्ति दे दो, है ना। कोई पेशेंट भी होते तो ऐसा भी सोचते हैं ना कि तड़फ के ना हो। तो ये संसार की भी हालत कैसे है? विश्व का परिवर्तन 1 सेकंड में भी हो सकता है। हम सब ने उसका भी रिहर्सल देखा। कोरोना में वायु, उसको कौन देख सकते, कौन रोक सकते? कैसा हो गया है ऑक्सीजन के बिना। तो ऐसा कोई जहरीली वायु होगा तो 1 सेकंड में विश्व परिवर्तन होना, इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो समय हमारे सामने है, इसमें रोज डेली लाइफ में भी जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, अच्छा, ये 6 टेस्ट का जो लिक्विड होता है जिसको उगादी पచ్చड़ी అంటారన్నట్టు. అందులో 6 రుచులు ఉంటాయి. తీపి, ఒగరు, ఇసము, కారము, పులుపు, తీపి అన్నీ కలిపి అన్నట్టు. ये 6 प्रकार का मिला करके उसको सेवन करते हैं। और पंचांग श्रवण सुनने का एक विधि रहता है। शाम को तैयार होकर के पंचांग श्रवण सुनते, जिसमें साल भर क्या क्या होने वाला है ये सारी बताया जाता है ऋतु के हिसाब से, इस हिसाब से। तो एक लास्ट में पंचांग श्रवण का भी सुना करके मैं पूरी करती हूँ कि हमारी बड़ी दीदी ये कहानी सुनाते थे। तो पहले ये उगादी के दिन हर कोई अपना फ्यूचर का वो ज्योतिष रहते ना, उसका पंचांग श्रवण सुनते थे। तो ऐसे एक बार एक किसान को बहुत दिल होता है कि मैं भी अपना सुनूं। संध्या के समय पर ये सुनाते थे पहले ज़माने में, आजकल तो दिन में भी करते। उस दिन उगादी के दिन पंचांग श्रवण होता है। तो वो व्यक्ति को एक का नाम सुना है, बाजू के गांव में बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। वो जो सुनाता है वो सच होता है। तो फिर वो निकल पड़ता है उनसे सुनने के लिए। तो पहुँचते पहुँचते गांव शाम हो जाता है। वो उनके पंचांग सुनाने वाले के पास जाकर के अपना हाथ दिखा देता है, और वो एकदम चौंक जाता है। और वो कहता है कि आप कल सवेरे आना, आपकी रेखाएं थोड़ा सही नहीं है, कि मैं अभी नहीं सुना सकता क्योंकि मेरे को भी सही दिख नहीं रहा है। तो वो जो बोलता है मैं अभी इतना दूर से आया, रात को रुकूं कहाँ, कि आप सुनाओ ना। तो उनको इसलिए वो कल के लिए टाल देता है। वो देखा है उसकी मृत्यु अभी लिखी हुई है। उसको लगता है ज्योतिष का अगर मैं इसको सुना दूँ तुम्हारी आयु पूरी हो, शाक में इधर ही ना मर जाए। उस हिसाब से उन्होंने कल के लिए पोस्टपोन करता, ताकि कल तक उसकी आयु बिल्कुल नहीं है, वो कल तक रहेगा ही नहीं, उसको पक्का मालूम।
उन्हें इसलिए कल आओ बोल के बोल देता। फिर ये इनको तो मालूम नहीं है ना, उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने सोचता है अभी रात भर कहाँ रहो, चलता है दूर, थोड़ा दूर। तो चलते चलते उनको एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, बारिश होती है तो फिर पेड़ के नीचे अपना को बचाने के लिए खड़ा रहता, बिजली कड़कती रहती। तो फिर दूर एक शिवलिंग दिखता है और वो पूरा छत, सूखे पत्ते, पूरा ऐसा बहुत पुराना, मतलब टूटी फूटी अवस्था में रहता। उसको देखकर जब जब बिजली चमकती वो शिवलिंग को देख करके बड़े अच्छे रूप में निहारता है। अरे शिव भगवान की मूर्ति है, लेकिन ऐसे ऐसे हालात में है कि मैं इसकी सेवा करूँ, ऐसा सोच के कदम आगे उठाता है और बिजली गिरती है, पेड़ जल जाता है। वो आगे आता है शिवलिंग के पास समीप पहुँचने, वो उसको ध्यान नहीं दिया, वो फिर शिवलिंग के पास पहुँच जाता है। पहुँच करके बहुत अच्छे रूप से वहाँ जो भी पहले एक पिलर रहता है, पिलर के पास खड़े होकर के, अरे ये तो बड़ा पुराना लग रहा है लेकिन है सुंदर, ऐसा करके लिंग के समीप पहुँचता। तो वहाँ छत गिरती है और नीचे सांप है और छत जा कर के सांप के ऊपर। उसका मृत्यु सांप से भी होने वाला था, छत से भी होने वाला था। वो तो उसको मालूम नहीं, पीछे ऐसा मोड़ के देखता है तो सांप भी है, छत गिरा। फिर वो लिंग को पूरा पत्ते निकाल करके रात भर थोड़ा जितना उनको साफ करने का हुआ करके, अरे ये बड़ा अच्छा मंदिर बनेगा, शिव की आराधना करेंगे तो कितना अच्छा माहौल होगा, ऐसा सोचते सोचते सो जाता है। फिर सवेरे उठ करके वो ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है। फिर अभी उनकी शॉक हो जाता है कि पहुंचा कैसे, वैसे ही पूछ लेता तुम पहुंचा कैसे। तो इनको गुस्सा आएगा कि कल रात को मैं इतना मेहनत करके आया और कल आओ बोले आप, फिर आज मुझे देख कर कहते हो पहुंचा कैसे कि आप क्या समझते हो। उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने शांति से समझाता, मैं आपका रात को ही हस्तरेखाएं देखा। वो तो इतना तक कहता था तुम भूत तो नहीं हो तो वो बोलता है आज ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो, गुस्से से बोले तो मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी आयु कल पूरा हुआ, आज कैसे तुम जिंदा हो, इधर से जाने के बाद क्या क्या हुआ मुझे पूरा सुनाओ। तो ये जो आपको बात सुनाई वो सारा वो सुना था। मैं निकला, फिर पेड़ में बिजली गिरा, देखा है ना, शौक नहीं हुआ, लेकिन वो उसका इतना गौर नहीं किया। को तुम्हारा जो संकल्प ईश्वर के प्रति लगने लगा ना, तो तुम्हारी आयु तो जितना तुम्हारा दिल ईश्वर को चाहने लगा, मन तन से भी पहुंचा, मन भी लगाया, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी आयु। इसलिए भक्त मार्कंडेय की कहानी में सुनाते ना, शिव को आलिंगन किया और धर्मराज समीप नहीं पहुंच पाए। तो हाथों से आलिंगन ही नहीं, दिल से, दिमाग से समझ करके ईश्वर की याद का आनंद लेना। तो इसलिए शिव को, परमात्मा को कहते हैं पाप कटेश्वर, हर हर पाप को हरने वाला। तो परमात्मा की याद हमें सब प्रकार की परिस्थितियों से पार कर देता। अगर कोई कारण अकारण हमारे सामने परिस्थिति आई, मानो उसमें भी भलाई समाया हुआ होगा। जैसे अपना श्री राम जी का पिताजी ना, दशरथ पुत्र कहते ना, उनका श्राप था, पुत्र वियोग से ही उनकी मृत्यु हो गई। उसमें भी जैसे ही राम जी वनवास में गए और उनका देहांत हुआ, लेकिन जब तक उन्होंने जंगल में पहुंचेंगे नहीं तब तक रावण का संहार कैसे होगा। ये सारी कहानी का जड़ तो पहले वहाँ शुरू हुआ ना। तो कई बार संसार की दुष्टता समाप्त करने के लिए कुछ परिस्थितियों को हर कोई को सामना करनी पड़ती है। तो इसलिए इस उगादि में हम सवेरे से लेकर के विजय का, वो महाराष्ट्र गुड़ी पाड़वा का रखते हैं ना, वो विजय का कहा जाता है। तेलुगु स्टेट्स में तोरण लगाते हैं, वो विजय के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार हम उगादि में जो भी प्रकार की विधि अपनाते हैं उसमें बहुत सुंदर आध्यात्मिकता हमको जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। तो हम नाम का
मतलब जो भी हो, लेकिन हम अपने विचारों को सदा श्रेष्ठ रखें, ईश्वर के साथ दिल से जोड़ते हुए हम अपने कर्मों का आनंद लेवे, है ना। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा जैसा करेगा वैसा हमको ज़रूर मिलेगा है। लेकिन हम ईर्ष्या, द्वेष और रिवेंज, हाँ, सबसे बड़ा कलयुग में रिवेंज से ही पूरा महाभारत युद्ध का कारण ही रिवेंज है ना। పగ పగ అనేది तो वही माया का रूप है। तो उसमें भी इतिहास में ऐसा कहानियाँ सुनाते, ईश्वर और असुर का युद्ध होने लगा, ईश्वर के शरीर से भी एक पसीना छूटा जो मंदिर बना, और उनके से भी असुर के भी वो छूटा, वो अनेक असुर बन गए। तो इस प्रकार आजकल हमारी श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ दुनिया बनेगी। अगर बुरे विचार करते तो आज से हम सबकी नवयुग के लिए यही शुभकामना करते हैं। आज का जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है ना, उसमें 3 शब्द हैं। तो उसमें है बोल में निरहंकारी, बोल में निरहंकारी, है ना। अगर कोई गुस्से से भी बोलते हैं, डिसरिगार्ड से भी बोलते हैं, तो आपस में संबंधों में समरसता होती है नहीं होती है ना। तो बोल से ही, तो बोल में आज का हमारा जो सत्संग की क्लास है, हमारी बोल में निरहंकारी हो और विचारों में निराकारी। विचार हमारा निराकारी माना, अभी हम सब ये शरीर रूपी चित्र लेकर के इस संसार में हम खेल रहे हैं। ये शरीर तो एक खिलौना है ना, चित्र है, लेकिन इस खिलौने में खेलने वाली प्राण शक्ति ही जीवन है ना। प्राण शक्ति नहीं है तो इस खिलौने के हम एक दिन भी रख नहीं पाएंगे। इतना बैक्टीरिया आ जाता है शरीर के अंदर, बदबू आ जाते हैं। जब तक ये प्राण है तब तक ये खिलौना चलेगा, ये प्राण ही नहीं है तो खिलौना ही नहीं चलेगा। तो प्राण शक्ति से देख कर के हम कितना आत्मीयता से व्यवहार करते हैं। तो हमारे विचारों में निराकारी माना, हर एक के अंदर ये प्राण शक्ति जो है वो सबका पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको कहते विचार में निराकार है। जिसका हम अपना भारत में आजकल आ रहे हैं ना, वंदे मातरम या जनगण मन अधिनायक, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहते हैं, या इंडिया इज़ माई कंट्री ऑल इंडियंस आर माई, हाँ, वो किस नाते से निराकारी है। आत्मा के रूप में हम सब एक है, एक पिता के संतान है। बोल में निरहंकारी, ईगोलेस, और कर्म में निर्विकारी, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 1 साल का नाम भी विकारी नाम समझ, तेलुगु ईयर्स में 1 साल का नाम भी होता है। तो विकारों को हम समाप्त करना। तो कई लोग ग्रीडी से, है ना, अभी गैस से स्केर्सिटी हम कई बार समझ में आ जाता है, होगा उनके पास स्टॉक, पर 1000 के सिलेंडर अगर किसी को मैं 4000 में बेच सकता हूँ, तो मैं 1000 का जो कस्टमर है उनको मैं क्यों दूँ, देने का है। तो वो क्या है, ग्रीडी है या कि नहीं। तो ये जो लोभ है, मोह है, अहंकार है, मतलब संसार में इतनी संपत्ति है जो कोई को कोई समस्या नहीं होगा, परंतु हम सब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर के अपने संसार को दुख दर्द वाला बना दिया। अगर हम मन में एटलीस्ट हमारे विचारों में सब भरपूर रहे, सब खुश रहे। फिजिकली आप किसी को उपाधि दे सकते या नहीं दे सकते, विचारों से बद्दुआ तो नहीं दो, उतना तो करो, करना है ना अपने को। तो कर्मों में निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये उगादि में ये शब्द हम लेंगे अपने बोल से। आपके जो नियर एंड डियर है, कम से कम उनको तो निरहंकारी से बात करो। जिसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है, रहना उनके साथ है, और लड़ना मिलना, लड़ना मिलना इससे तो बेहतर है। उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, कारण अकारण हो जाता है तो फिर मिलना अच्छा है, पर उसको खींचना नहीं है, ठीक है। तो खींचेंगे तो एक दिन तो टूटेगा ना, खींचना नहीं, ठीक है। मजबूत करना रिश्तों को, संबंधों को, अपने विचारों को, कमज़ोर नहीं, हाँ, काम के बनाना है, पावरफुल बनाना है। तो अभी कुछ पल मेडिटेशन करें। तो मैं सजेस्टिव थॉट्स देती हूँ हम अपने मन को परमात्मा तक पहुँचाने का, ठीक है। सिट स्ट्रेटली, सीधा बैठना,
एक बार सांस अंदर लीजिए, बाहर, रिलैक्स। सोचिए भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ जब सितारा हो, आंखों से देखने वाली हूँ, मुख से बोलने वाले हूँ, इस शरीर से हर कर्म करने वाली हूँ। मैं एक अद्भुत शक्ति हूँ। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मेरे संकल्प मेरे सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं इस संकल्प रूपी धन को, संपत्ति को सही दिशा में निर्देशन करूंगी। अब हम सब मिलकर के अपने अपने मन में ये सुविचार करेंगे। ये सारा विश्व भूमंडल, अर्थ प्लैनेट वन फैमिली है। एक परिवार है। हम सब का पिता हर हर महादेव परमात्मा शिव है। इस सारी धरती में हर देश, हर स्थान, हर मनुष्य आत्मा के मन में शांति, प्रेम, आनंद के प्रकंपन है। हम सब एक है, एक के हैं। ये पांच तत्व पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले प्रेम और शांति के तरंगों में श्रेष्ठ और शुद्ध बनते जा रहे हैं। ये संसार मेरा परिवार है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव शांति की सूर्य है। परमात्मा शिव से शांति के किरणें हैं। निकल निकल कर इस पृथ्वी के चारों तरफ फैल रहे हैं।
परमात्मा शिव प्रेम और आनंद के सूर्य समान है। जैसे सूर्य की किरणें कीटाणुओं को समाप्त करते हैं, शिव बाबा से निकलने वाली ये प्रेम और आनंद की किरणें नफरत, द्वेष आदि आदि कीटाणुओं को समाप्त कर हर एक के मन में शांति, प्रेम की भावना उत्पन्न हो रहा है। फिर से ये वसुंधरा देवभूमि बनता जा रहा है। इस नववर्ष की पावन पर्व में मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूँ, मैं अपने संकल्पों को आयतार्थ, वेस्ट, नेगेटिव, अननेसेसरी से मुक्त, एक एक संकल्प शुद्ध, शांत, शीतल, आवश्यक विचार ही उत्पन्न करूंगी। अपने विचार रूपी संपत्ति को ध्यान रखते हुए मैं अपने विचारों का सुविचार रूप में दान करते हुए हर एक से निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी रूप में जीवन श्रेष्ठ, खुशहाल, श्रेष्ठ जीवन जिऊंगी।